آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر میں طوفانی ہواؤں کا قہر، ایئرپورٹ ٹرمینل کے اندرونی چھت اچانک نیچے گرنے سے مچی سنسنی۔ خوش قسمتی سے ٹلا بڑا حادثہ، تمام مسافر اور عملہ بالکل محفوظ، ایئرپورٹ انتظامیہ نے شروع کی جانچ۔ جالنہ میں مانسون سے پہلے میونسپل کارپوریشن کا بڑا ایکشن، شہر کی 100 مخدوش اور خطرناک عمارتوں کو نوٹس جاری، خستہ حال عمارتیں فوراً گرانے کا سخت حکم، لاپرواہی برتنے پر کارپوریشن خود کرے گی مخدوش عمارتیں زمین دوش، کمشنر انجلی شرما کا انتباہ۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر شہر میں امن کمیٹی کا اہم اجلاس، انتظامیہ اور مذہبی رہنماؤں کا امن و بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ پولیس کمشنر پروین پوار نے شہریان سے قانون کی پابندی اور حکومتی ہدایات پر عمل کرنے کی پرزور اپیل۔ اور جالنہ میں غیر قانونی دھندوں پر پولیس کا بڑا ایکشن، گٹکا، دیسی شراب اور جوئے کے اڈوں پر اچانک مارے چھاپے، لاکھوں کا مال ضبط، مہم آگے بھی جاری رکھنے کا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ہوائی اڈے پر تیز طوفانی ہواؤں کے باعث ٹرمینل کی اندرونی چھت کا ایک حصہ گرنے سے سنسنی پھیل گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام مسافر محفوظ رہے۔ آج شہر میں اچانک موسم تبدیل ہونے کے بعد چلے تیز طوفانی ہواؤں کے تھپیڑوں نے ہوائی اڈے پر زبردست تباہی مچائی۔ تیز ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ایئرپورٹ ٹرمینل کے اندرونی حصے کی چھت اچانک اکھڑ کر نیچے گر گئی۔ چھت گرتے ہی وہاں موجود مسافروں اور ایئرپورٹ عملے میں افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد ایئرپورٹ انتظامیہ نے مستعدی دکھاتے ہوئے صورتحال پر قابو پایا اور متاثرہ حصے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ راحت کی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہاں کوئی پرواز موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی کے پیش نظر اس حصے کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے اور تکنیکی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ضلع جالنہ کے گھنساؤنگی تعلقے میں اچانک موسم بدلنے سے تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی۔ شدید گرمی سے پریشان شہریان کو بڑی راحت ملی ہے۔ ضلع جالنہ کے تعلقہ گھنساؤنگی میں پیر کی شام اچانک موسم نے کروٹ بدلی اور تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ زبردست بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن بھر جاری رہنے والی شدید دھوپ اور شدید لو کی وجہ سے لوگ بے حال تھے، لیکن اس اچانک ہوئی بارش نے شہریان کو بڑی راحت پہنچائی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے بازاروں اور سڑکوں پر افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملا اور کچھ مقامات پر درختوں کی ٹہنیاں گرنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ سڑکوں اور کھیتوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس بارش سے نہ صرف درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے بلکہ کسانوں نے بھی اس کا استقبال کیا ہے، کیونکہ یہ بارش آنے والی خریف کی فصل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اورنگ آباد میں SC زمرہ بندی کے خلاف آزاد سماج پارٹی نے گھیراؤ کیا۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ اورنگ آباد میں SC آزاد زمرہ سماج پارٹی کی جانب سے شیڈول کاسٹ بندی کے فیصلے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پارٹی کارکنان نے نعرے بازی کرتے ہوئے وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شرساٹ کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے مارچ نکالا۔ مظاہرین وزیر موصوف کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جسے دیکھ کر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے فوری مداخلت کی۔ پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا اور حالات قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر کئی لیڈروں اور کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ اس کارروائی کے بعد علاقے میں کچھ دیر کے لیے تناؤ کا ماحول بن گیا تھا، جس کے پیش نظر پولیس بندوبست بڑھا دیا گیا ہے۔ آزاد سماج پارٹی نے یہ فیصلہ واپس نہ لینے پر تحریک تیز کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ आझाद समाज पार्टीच्या मोर्चाला घाबरून आपल्या झुंडाला पाय लावून हे पळून गेलेले आहेत। हे विधानसभेमध्ये आमच्या आरक्षण विरोधीकरणाच्या संदर्भामध्ये एक शब्दही बोलत नाहीत आणि जाब विचारण्यासाठी आलोय। सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी पळून जायची गरज नव्हती, जनतेला आपण फेस करावं। हे आरक्षण
उपवर्गीकरण कुठल्याच परिस्थितीत होऊ देणार नाही. हे आरक्षण उपवर्गीकरण रद्द झालंच पाहिजे. सैन्य शिक्षक मुर्दाबाद. हुकुमशाही नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी. अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे हुकुमशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है. सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है. शीर्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. शीर्षक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. अर्थाने संजय शिरसाटच्या पायाखाली माणूस या ठिकाणी अनुसूचित जातीचं जे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट या शासनाने घातलेला आहे तो एकदम चुकीचा असल्याने आम्ही या ठिकाणी आझाद समाज पार्टीच्या वतीने समाज कल्याण मंत्री यांना जाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. परंतु समाज कल्याण मंत्री रात्री औरंगाबादला होते. एका लग्नाच्या स्थळी या ठिकाणी आधी त्यांची भेट सुद्धा झाली होती. परंतु आज त्यांनी काढता पाय घेतलेला आहे. त्यांना दुविधामध्ये आहेत की समाजाला काय उत्तर द्यावं आणि तिथल्या बीजेपी शासनाला काय उत्तर द्यावं असं दुविधा अवस्थेमध्ये असलेला हा समाज कल्याण मंत्री आज आमच्या या आंदोलनाला घाबरून या ठिकाणी पळून गेलेला आहे. खऱ्या अर्थाने आंदोलन आता या ठिकाणी थांबणार नाही. महाराष्ट्रभर आझाद समाज पार्टीच्या वतीने ज्या ज्या ठिकाणी अनुसूचित जातीचे आमदार खासदार असतील त्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या घरी अशाच पद्धतीचं आंदोलन करणार आहे आणि अशाच पद्धतीचं आंदोलन करून आमची जी मागणी आहे उपवर्गीकरण थांबलं पाहिजे ते घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. जय भारत. औरंगाबाद से लोहागढ़ नांद्रा बस सर्विस को दोबारा शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मेमोरेंडम सौंपा गया. सोशल वर्कर गजेंद्र गवंडर ने वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक से मुलाकात की, जिन्होंने जल्द ही बस सर्विस बहाल करने का यकीन दिलाया. औरंगाबाद से लोहागढ़ नांद्रा रूट पर एसटी बस सर्विस गुज़िश्ता कुछ दिनों से बंद है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूल और कॉलेज के तलबा, ख़वातीन और बुजुर्गों को हो रही है. इसी के पेश नज़र समाजी कारकुन गजेंद्र मंगल वैजनाथ गोवंडर ने 23 मई को महाराष्ट्र के वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक से मुलाकात की और उन्हें एक मुतालबाती मकतूब सौंपा. वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए यकीन दिलाया है कि मुताल्लिक़ा अफसरान से बातचीत करके इस रूट पर बस सर्विस को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा. गाँव वालों ने इस कोशिश का खैर मकदम किया है. तालुका पैठन में दरियाए गोदावरी पर 350 मीटर तवील घाट की तामीर के लिए इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर तजावुज़ात हटाने की मुहिम शुरू कर रखी है. एमएलए विलास भूमरे की कोशिशों से इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है. तालुका पैठन में तारीखी दरियाए गोदावरी के साहिल को खूबसूरत बनाने और यहाँ एक शानदार घाट तामीर करने के लिए इंतज़ामिया ने जंगी बुनियादों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. गंगा भट्ट चौक से गणेश घाट तक तकरीबन 350 मीटर तवील घाट तामीर किया जाना है. इस अहम और बड़े प्रोजेक्ट के लिए एमएलए विलास भूमरे के ताउन से 20 करोड़ रुपए का भारी फंड मंजूर भी हुआ है, जिससे गोदावरी नदी के साहिली इलाकों की तरक्की को तेज़ रफ्तारी मिलेगी. पीर के रोज़ पुलिस के सख्त बंदोबस्त के दरमियान 5 जेसीबी मशीनों की मदद से घाट के आसपास की गैरकानूनी तजावुज़ात को हटाया गया और जगह को साफ करने का काम दिन भर जारी रहा. कार्रवाई से कबल तहसीलदार ज्योति पवार, म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी अंभूरे, पब्लिक वर्क्स के इंजीनियर धनराज शेलके और पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रमोद खाड़े ने मुश्तरका मुआयना किया. इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले में घाट की तामीर होगी और दूसरे मरहले में पूरे साहिल की सजावट की जाएगी, जिससे तालुका पैठन की खूबसूरती में इजाफा होगा और यहाँ आने वाले अकीदतमंदों और सयाहों को बेहतर सहूलियात मिलेंगी. जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून से पहले एहतियाती कदम उठाते हुए शहर की तकरीबन 100 मखदूश और ख़तरनाक इमारतों को गिराने का नोटिस जारी किया है. वाज़ेह हो कि शहर जालना में मानसून के दौरान किसी भी इम्कानी हादसे और जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट हो गई है. कॉरपोरेशन ने शहर की तकरीबन 100 मखदूश और ख़तरनाक इमारतों का सर्वे करने के बाद उनके मालिकान को सख्त नोटिस जारी किए हैं. म्यूनसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने वाज़ेह हिदायत दी है कि इमारत के मालिकान इन मखदूश ढांचों को फ़ौरन अपने खर्च पर गिरा दें, वरना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कानून के मुताबिक खुद कार्रवाई करेगी और इमारत को ज़मीन दोज कर देगी. इंतज़ामिया ने शहरियान से भी अपील की है कि वह बरसात के मौसम में हादसात से बचने के लिए कॉरपोरेशन का ताउन करें और नोटिस के बाद भी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाया जाएगा.
जालना में मानसून की तैयारियों को लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जायज़ा मीटिंग की, जिसमें बताया गया कि शहर के 64 बड़े नालों की सफाई का 50% काम मुकम्मल हो चुका है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून की आमद से कबल शहर की सफाई और नालों की सफाई के कामों में तेज़ी लाई है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा के दफ्तर में तमाम सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की एक अहम जायज़ा मीटिंग मुनक्किद हुई। शहर के तमाम 16 वार्डों में सफाई सुथराई की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए अब हर वार्ड के लिए एक आज़ाद सैनिटरी इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर अंजलि शर्मा ने बताया कि शहर के 50% सफाई का काम बड़े नालों में से तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मानसून के दौरान शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल या पानी जमा होने की शिकायत पैदा न हो, इसलिए बकिया कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई हैं। सर्वांना नमस्कार, मी अंजली शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सध्या म्युनिसिपल कमिशनर जालना चे पदावर कार्यरत आहे। मॉन्सून पूर्वी आढावा बैठक आमचे ऑनरेबल सीएम सर यांनी लास्ट वीक मध्ये घेतली होती। त्यांचे निर्देशनाप्रमाणे आणि कलेक्टर मॅडमच्या निर्देशनाप्रमाणे आम्ही आमचे जे स्वच्छता निरीक्षक आहेत त्यांची बैठक नालेसफाई बद्दल आणि मॉन्सून पूर्वी जे आपल्याला नियोजन करायचे त्याच्याबद्दल आज घेतली आहे। आम्ही आमचे जे जालनाचे लोक आहेत त्यांना सांगून इच्छिते की पूर्वी आमच्याकडे 10 एसआय होते। आता आम्ही जे आमचे एसआय आहेत ते 16 केले, वाढवले आहे आणि प्रत्येक एसआयचा जे एरिया आहे ते आपला जे इलेक्शन वॉर्ड आहे त्याप्रमाणे त्यांना ते दिलंय, त्या की त्यांची जबाबदारी व्यवस्थित आपल्याला ठरवता येते। दुसरा, आम्ही आमचा जे फील्ड स्टाफ आहे सॅनिटेशनचा तो पण वाढवतोय। सगळ्यांना माहिती आहे की महानगरपालिकामध्ये स्टाफची कमतरता आहे आणि आपले जे रिक्रुटमेंट रूल्स आहेत तो पण शासनाकडे सध्या प्रलंबित आहे। तर पूर्वी आपण असं केलं होतं की जे सफाई कामगार आपल्याला इथे गरज होती त्यांना थोडे लोकांना आपण ऑफिसमध्ये घेतलं होतं कामासाठी, काही लोकांना शिक्षण विभागात दिलं होतं। परंतु आता आम्ही हे नियोजन करतोय की स्कूल बंद आहे तर शिक्षणचे जेवढे सफाई कामगार आहेत ते आपण फील्डवर घेतो। आपल्या ऑफिसमध्ये पण ज्यांची गरज नाहीये तिथे कमी करून स्वच्छतावर कसं लक्ष देता येते आपल्याला जालनासाठी तो फोकसमध्ये ठेवून आपण ते लोकांना इथे घेणार आहे। तर 2-3 महिन्यामध्ये आपल्याला दिसेल की आपली जी स्वच्छता आहे ते व्यवस्थित होतील। आपले जे मोठे नाले आणि छोटे नाले आहेत त्याची एक एकत्रित यादी आम्ही केली एसआय मार्फत। ते 64 एकूण एवढे नाले आम्हाला सापडले, ज्यापैकी 10 ते 12 मोठे नाले आणि बाकी छोटे नाले। आमचं जे काम आहे ते चालू आहे। मोठे नाले बऱ्यापैकी 50% आम्ही क्लिअर केले आहे आणि बाकी पण जून पूर्वी होतील, काही की आमचं इन्फॉर्मेशन आमच्याकडे अशी आहे शासनामार्फत की जूनचे पहिले 10 दिवस खूप एक्स्ट्रा म्हणजे इंटेन्सिव्ह पाऊस पडणार आहे, तर त्याप्रमाणे आपण नियोजन करतोय। सोबतच आम्ही अतिक्रमणची ड्राईव्ह पण घेतोय आणि आमचं आता अतिक्रमणमध्ये नियोजन असं आहे की जे परमनंट स्ट्रक्चर ओटे वगैरे लोकांनी नालीवर बांधले ते आम्ही पूर्वीच काढून घेतोय। फॉर एक्झाम्पल काय आहे, आणि तर नाली पण आपण साफ करतोय रोड साईडची, पण पावसामुळे काय अडचण आली की आपल्याला ते स्पेस ओपन असले पाहिजे साफसफाईसाठी, तेवढं आमचं पूर्वीचं नियोजन आहे। शेंद्रा एमआईडीसी इलाके में मानसून की पहली ही तूफ़ानी बारिश ने कहर बरपा कर दिया। तेज़ हवाओं की वजह से जालना रोड पर एक बड़ा दरख्त गिर गया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पुलिस की लापरवाही के बाद मकामी लोगों ने खुद ही मेहनत करके रास्ता साफ किया। शेंद्रा एमआईडीसी सर्कल और उसके करीबी इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिश की पहली दस्तक ने इंतज़ामिया के दावों की पोल खोल कर रख दी है। तूफ़ानी हवाओं के सबब जालना रोड पर एक बड़ा दरख्त उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसकी वजह से शाहराह पर तकरीबन 25 मिनट तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम रहा। हैरत की बात यह रही कि हादसे के फ़ौरन बाद चिकलथाना पुलिस स्टेशन को इत्तला दी गई, लेकिन 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई पुलिस अहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में मुसाफिरों की परेशानी को देखते हुए शेंद्रा के मकामी शहरियान ने खुद ही कमान संभाली। मकामी लोगों ने कड़ी मशक्क़त और भारी जद्दोजहद के बाद सड़क पर गिरे दरख्त को काट कर एक तरफ हटाया, जिसके बाद कहीं जाकर सड़क पर ट्रैफिक दोबारा बहाल हो सका। इंतज़ामिया की इस लापरवाही के खिलाफ अब शहरियान में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। मी कंपनीतून सुटलो होतो। कंपनीतून जसं आम्ही इकडे आलो तर मला दिसलं की इथं रोड जाम दिसला। मग आम्ही काय केलं, आमच्या गावातले आमचे मामाचे मुलगा आहे अशोक कचकुरे म्हणून, आम्ही त्यांना कॉल केला। मग त्यांनी काय केलं, त्यांनी लगेच त्यांच्या घरी जाऊन केनीचं ट्रॅक्टर आणलं। केनीचं ट्रॅक्टर आणल्यानंतर मग काय केलं, आम्ही काही जणांनी तिकडं अर्धी ट्रॉफिक तिकून डिवाइड केली जी दुसऱ्या रस्त्या मार्गी लिबर चौकातनं हायवे रोडला जॉईन होईल, आणि मग बाकीचं काही उरलेलं जे हे मुवमेंट होती गाड्याची ती आम्ही ह्या रस्त्याने चालू ठेवली। आणि मग केनीचं ट्रॅक्टर आल्यानंतर आम्ही पूर्ण रस्ता साफ केला, म्हणजे केनीने पूर्ण झाड आपण नालीमध्ये लोटून दिलं, जेणेकरून सगळे
वाहतूक सुरळीत झालेली आहे. इथं कमीत कमी अर्धा घंट्याच्या वर वाहतूक विस्कळीत झालेली होती पूर्ण. त्याच्यामुळे पूर्ण जाम झालं होतं. पार 1 किलोमीटरच्या आसपास पूर्ण रस्ता जाम झालेला होता. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट को नई सिमत देने वाले मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा को मुलाजमीन ने अलविदा कहा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 5 सालों में उनकी क़ियादत में कॉरपोरेशन की तिब्बी खिदमात में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ देखने को मिली। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट जो कभी खस्ताहाली और नज़रअंदाजी का शिकार था, गुज़िश्ता 5 सालों में मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की क़ियादत और कमिश्नर की रहनुमाई में कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। उनकी शानदार खिदमात के बाद उनकी रिटायरमेंट पर कॉरपोरेशन के हेल्थ अफसरान और मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से 2 अलग अलग अलविदाई तकरीबात का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मंडलेचा के दौरे हुकूमत में कॉरपोरेशन के अस्पतालों की काया पलट हुई। 6 ऑपरेशन थिएटर्स को जदीद बनाकर 313 लेप्रोस्कोपी सर्जरियां की गई और आने वाले वक्त में सीज़ेरियन डिलीवरी की सहूलियात भी शुरू की जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दीगर बैंकों के CSR फंड्स के ज़रिए उन्होंने 84 लाख रुपए की जदीद तरीन तिब्बी मशीनें जैसे सोनोग्राफी और थैलीसीमिया टेस्टिंग मशीन कॉरपोरेशन को फराहम कराई। इसके अलावा मेल्ट्रॉन अस्पताल को कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम लाने और बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के टेंडर को कामयाब बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सिद्धार्थ उद्यान और दीगर मकामात पर मुनक़िदा इन तकरीबात में डॉक्टर कविता मंडलेचा, डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, डॉक्टर अंसारी और बड़ी तादाद में तिब्बी अमले ने शाल, श्रीफल और गुलदस्ता पेश करके उनके काम की सताइश की और उन्हें मुस्तक़बिल के लिए जज्बाती अंदाज में नेक ख्वाहिशात पेश की। ज़िला जालना में मिशन न्यूट्रिशन के तहत माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत पर ज़िला सतही ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। 25 मई से 7 जून तक चलने वाले इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और बच्चों की सेहत में सुधार लाना है। ज़िला जालना के ज़िला महिला और बाल अस्पताल में मिशन न्यूट्रिशन जालना के तहत एक अहम ज़िला सतही ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला व बाल कल्याण विभाग के इश्तराक से मुनक़िदा ये प्रोग्राम 7 जून तक चलेगा। इफ्ताही तकरीब में ज़िला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जयश्री भोसारे ने शिरकत की और हामिला माओं, दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों के लिए सही ग़िज़ाइयत की अहमियत पर जोर दिया। इस ट्रेनिंग में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविकाएँ और दीगर मुलाजिमीन को मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत की कमी की रोकथाम और बच्चों की देख रेख के बारे में तफसीली मालूमात दी जा रही है ताकि देही और शहरी इलाकों में सेहत को लेकर बेदारी पैदा की जा सके। आता जालन्याचं 3 आणि 9 आमच्यासारखंच आहे ना, का वेगळं आहे 3 आणि 9? 3 आणि 9 घड्याळ जालन्याला पण 3 आणि 9 दाखवतं का? मग सगळ्यांनी 3 आणि 9 पकडा। ईद उल अज़हा के पेश नज़र गैर कानूनी मज़ब्बा खानों और गाँवकशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इशारे दिए गए हैं। बीजेपी लीडर संजय किनीकर ने मुलजिमीन पर मकूका लगाने के CM देवेंद्र फडणवीस के फैसले का खैर मकदम किया है। आने वाले बकरीद के त्यौहार के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने गाँवकशी और गैर कानूनी मज़ब्बा खानों के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किया है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले की बीजेपी लीडर संजय कनेकर ने पुरजोर हिमायत की है। कनीकर ने कहा है कि गौ माता की हत्या करने वालों और गैर कानूनी कसाई खाने चलाने वालों के खिलाफ मकूका जैसा सख्त कानून लगाने का हुकूमत का फैसला काबिल सताइश है। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि जहाँ कहीं भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ चल रही हों उसकी इत्तला फ़ौरन पुलिस और इंतज़ामिया को दें। हुकूमत गाँवकशी की रोकथाम के लिए पूरी तरह पाबंद है और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय सर्वसामान्य नागरिकाला खूप आनंद झाला। देशातले पहिले मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस ज्यांनी येणाऱ्या बकरी ईदच्या दिवशी इशारा दिला आणि कडकपणे सरकारमध्ये निर्णय घेतला आणि तो निर्णय म्हणजे गोमातेचे हत्या करणाऱ्यांना विरुद्ध, गोमातेच्या हत्येचं अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या, अवैधरित्या कत्तलखाने चालवणाऱ्या यांना मोका लावण्याचा इशारा देण्यात आला, जो की जे अनाधिकृतपणे कत्तलखाने चालवतील, गोमातेची हत्या करतील त्यांना हा इशारा आहे। आणि त्यामुळे निश्चितच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या इशाऱ्याचं मी अभिनंदन करतो आणि जाहीरपणे स्वागतही करतो। खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय हा सर्व नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी आहे। त्यामुळे सर्व हिंदू नागरिकांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला सहकार्य करावं आणि जिथं जिथं अवैधरित्या कत्तल होत असेल,
गोमातेचं हत्या होत असेल तिथं सरकारला ताबडतोब कळवणे हे काम आद्य कर्तव्य म्हणून आपण केलं पाहिजे आणि या सरकारचा जाहीर खऱ्या अर्थाने स्वागत केलं पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम. ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में अमन व अमान और समाजी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट में अमन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ. इजलास में इंतज़ामिया, अवामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए पुरअमन तरीक़े से ईद मनाने के अज़्म का इजहार किया. अयार है कि ईद उल अजहा के मौके पर शहर में अमन, कानून व नज़्म और समाजी हम आहंगी बरकरार रखने के मकसद से पुलिस कमिश्नरेट में अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ. ये इजलास पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की रहनुमाई में मुनक़िद हुआ, जिसमें पुलिस और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सीनियर अफसरान, अवामी नुमाइंदों और मजहबी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इजलास के दौरान ईद उल अजहा को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया. पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमा हिदायत से शुरका को आगाह किया और शहरियान से अपील की कि वो मजहबी रसूमात और रिवायात की अदायगी के साथ साथ कानून की मुकम्मल पासदारी करें. उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करने पर ज़ोर दिया. इस मौके पर शहरियान से इंतज़ामिया के साथ ताउन करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की अपील भी की गई. इजलास में मौजूद मजहबी रहनुमाओं और अवामी नुमाइंदों ने इंतज़ामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और ईद उल अजहा को अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती के माहौल में मनाने का अहद दोहराया. शहर हमारा है, इस शहर को आगे लेके जाना, इस शहर का अमन कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभाना ये हमारा काम है. इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई चीज कर रहा है तो आप हमें बताइए. बट कोई चीज इंटेंशनल भी नहीं होती. अभी मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 साल में कई शहरों पे मतलब अभी वो जो वेस्ट पार्ट रहता है, कुर्बानी के बाद जो पार्ट रहता है वो लेके जाते वक्त कोई कचरे के गाड़ी से पड़ा और वो समझो कि एक मंदिर के सामने पड़ा या किसी दूसरे समाज के धार्मिक स्थल के आजू बाजू में पड़ा तो उसमें से चीजें बिगड़ जाती है. तो ये हर एक की जिम्मेदारी है. मतलब हम हमारा त्यौहार मनाते वक्त किसी ऐसी भी चीज ना हो जाए कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए. तो जो भी आप करोगे तो उसके टाइम वो जो वेस्ट पार्ट रहता है उसका डिस्पोजल भी अच्छे तरीके से होना, ये हमारी जिम्मेदारी है. और इसके लिए दोनों ने मतलब कुर्बानी देने वाला और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे महापालिका के जो लोग हैं, हमारा पुलिस का तो उसमें मॉनिटरिंग नहीं रहेगा, तो वो भी करना बहुत जरूरी है. औरंगाबाद में आज मठारी मजदूरों ने अपने रोज़गार और तनख्वाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने एक बड़ा धरना किया. मराठवाड़ा लेबर यूनियन की क़यादत में सैकड़ों मजदूरों ने हुकूमत के हालिया हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की. मराठवाड़ा लेबर यूनियन की पुकार पर पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ औरंगाबाद में भी 25 और 2 मई को 2 रोज़ा धरना मुजाहरा शुरू किया. सरकारी अनाज गोदामों में काम करने वाले मठारी मजदूर बड़ी तादाद में कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हुए. मजदूरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने 22 अप्रैल 2024 को जो नया GR हुक्मनामा जारी किया है वो गैर कानूनी है और उससे उनका रोज़गार छीन जाने का ख़तरा पैदा हो गया है. वो इस हुक्मनामे को फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं. इस एहतजाज के दौरान मज़दूरों ने ये भी मांग की है कि गोदामों के तमाम काम रजिस्टर्ड मठारी मज़दूरों से ही कराए जाएं और उनके बकाया जात जल्द अज जल्द अदा किए जाएं. सिर्फ यही नहीं, मज़दूरों ने किसानों की हिमायत में तमाम ज़रई अजनास के लिए MCP को कानूनी दर्जा देने का भी मुतालबा किया. सुभाष लोमटे और एडवोकेट सुभाष सांगवीकर की क़यादत में हुए इस एहतजाज में इंतबाह दिया गया है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात फौरी तस्लीम नहीं किए तो उनका ये एहतजाज आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा. सरकारला आम्ही एवढंच म्हणतो आहोत, या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आज आपण जे निवेदन तयार केलेलं आहे ते मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने आहे, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने आहे, अन्न पुरवठा मंत्र्याच्या नावाने आहे आणि कामगार मंत्र्याच्या नावाने आहे. हे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत ते जाईल. मात्र या निवेदनाची गांभीर्यानं दखल घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील हे तातडीनं शासनाशी चर्चा करून 27 तारखेपासून
बेमुदत आंदोलन करण्याची पाळी आमच्यावरती येऊ नये एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा. शहर के वालूज इलाके में धमकी के मामले में कार्रवाई न होने पर एक शख्स ने पुलिस स्टेशन के सामने पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश की। औरंगाबाद के वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के सामने इतवार की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब पंढरपुर के रहने वाले जुबैर लाला दौलत खान पठान ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। जुबैर का इल्ज़ाम है कि उन्हें मोबाइल पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, जिसकी शिकायत वो पुलिस में करने आए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से अदम ताउनी और सिर्फ मामला दर्ज करने की बात से नाराज़ होकर उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें रोका और एक बड़ा हादसा टल गया। बाद में समझाने बुझाने पर वो शिकायत दर्ज कराकर वहां से रवाना हो गए। तुम्ही म्हणू लागले मी घेत नाही, तक्रार यांची घेता, तपास करू, म्हणजे तोपर्यंत तो मला अटकून दिला साहेब. तुम्ही यांची तुम्ही त्याला अटक करा. त्याचे मला आतापर्यंत 30 फोन माझ्याकडे कॉल हिस्ट्री आहे. मी प्रामाणिकपणे मध्ये गेलो साहेब, मला FIR पाडायची, तुम्ही मला धमकी दिली तुझी विकेट पाडतो म्हणून. मी काय सामान्य नागरिक, मी बिझनेसमॅन आहे, माझा NK फिल्टर सेंटर म्हणून बिझनेस आहे. मी माझ्या गाडीत पेमेंट राहतं, माझ्याकडे व्हाईट पेमेंट राहतं. उद्या चालून यांनी मला गाडी आडी मारून पैसे काढून घेतले, मारून टाकलं तर काय करणार आहे मी. जिला औरंगाबाद में शिवसेना के जिला नायब सदर अंबादास महस्के पर चाकू से कातलाना हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। औरंगाबाद में एक चौंकाने वाला वाक़या सामने आया है, जहां शिवसेना के नायब जिला सदर अंबादास महस्के पर जानलेवा हमला किया गया। ये वाक़या बाबा पेट्रोल पंप चौक पर पेश आया, जहां पेशावर शूटर राम बोड़खे ने महस्के को फ़ोन करके मिलने बुलाया। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने मैं मजाक कर रहा था कहते हुए गले मिलने के बहाने अचानक चाकू निकाला और अंबादास महस्के के गले पर वार कर दिया। ज़ख्मी हालत में मस्के को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। क्रांति चौक पुलिस ने सब इंस्पेक्टर सुनील माने की निगरानी में मुलजिम राम बोड़खे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। काल रात्री 11:30 वाजता बाबा पेट्रोल पंप महावीर चौकात ट्रॅव्हल एजन्सीच्या समोर एक चाकू हल्ला झालेली घटना घडलेली आहे। त्यामध्ये अंबादास मस्के नावाची व्यक्ती जखमी आहे, त्यांच्यावरती औषध उपचार चालू आहे आणि राम बोडके नावाच्या आरोपीनं त्याच्यावरती चाकू हल्ला केलेला आहे। त्या बाबतीत क्रांती चौक पोलीस स्टेशनला रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये अटक नाहीये, कारण तो आरोपी पण जखमी आहे, त्याच्यावरती औषध उपचार चालू आहेत। जालना में पुलिस ने गैरकानूनी धंधों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए गुटखा, देसी शराब और जुए के अड्डों पर छापे मारकर लाखों का माल जब्त किया। कदीम जालना पुलिस स्टेशन की हदूद में गैरकानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। ज़िला पुलिस सुपरिंटेंडेंट तेजस्वी सिंह सिंधु की हिदायत और इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े की क़ियादत में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर अचानक छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान 1,31,000 रुपये मालियत का गैरकानूनी गुटखा जब्त किया गया। इसके अलावा राहुल नगर और कैकाड़ी महल्ले में जुए और देसी शराब के अड्डों को तबाह करते हुए 4 लाख नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने इस मुहिम में कुल 6 मुकदमात दर्ज किए हैं और वार्निंग दी है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में तूफानी हवाओं का कहर, एयरपोर्ट टर्मिनल की अंदरूनी छत अचानक नीचे गिरने से मची सनसनी। खुशकिस्मती से टला बड़ा हादसा, तमाम मुसाफिर और अमला बिल्कुल महफूज। एयरपोर्ट इंतजामिया ने शुरू की जांच। जालना में मानसून से पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा एक्शन, शहर की 100 मखदूश और ख़तरनाक इमारतों को नोटिस जारी। खस्ताहाल इमारतें फ़ौरन गिराने का सख्त हुक्म, लापरवाही बरतने पर कॉरपोरेशन खुद करेगी मखदूश इमारतें ज़मीन दोष। कमिश्नर अंजलि शर्मा का इंतबाह। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में अमन कमेटी का अहम इजलास, इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं का अमन व भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने शहरियान से कानून की पाबंदी और हुकूमती हिदायत पर अमल करने की पुरजोर अपील। और जालना में गैर कानूनी धंधों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, गुटखा, देसी शराब और जुए के अड्डों पर अचानक मारे छापे, लाखों का माल जब्त, मुहिम आगे भी जारी रखने का इंतबाह।
اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.